Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And today I am going to teach you about the mode of enzyme action along with the enzyme inhibition and different types of enzyme inhibition. Yesterday we have discussed about the general features of an enzyme and what are the different factors which are affecting the activity of enzyme and what is the exact meaning of enzyme activity, what is turnover number, which enzyme are more efficient, when enzyme work very good, when enzyme activity is reduced, and all the things we have covered yesterday. Now we'll be talking two topics today. First would be mode of enzyme action, the different two theories, and then the major topic or then the other topic would be enzyme inhibition. So let us start about the modes of enzyme action. There are two theories which are widely accepted in order to learn how enzyme act. The first theory is known as lock and key hypothesis. First we will be learning lock and key hypothesis, and the next theory we are going to learn would be induced fit theory. Induced fit theory. You can remember both like this. The earlier theory which was being postulated, it was lock and key hypothesis, and later on induced fit theory was there. Lock and key theory was postulated by Dr. Emil Fischer. Emil Fischer in the year 1894, whereas induced fit theory was postulated by Dr. Koshland in the year 1960, somewhere around 1959 or 1960. First, I will be telling you what is the positions of induced fit theory. Then I will be telling you what is the proposition of lock and key hypothesis and what is the proposition of induced fit theory and which theory is more accepted. Coming on the proposition of lock and key hypothesis, according to this theory, an enzyme and a substrate, they behave like a lock and key. For example, as by a particular key, a particular lock can be unlocked. Similarly, a particular substrate can be catalyzed by a particular enzyme. So this theory states that enzyme and substrate, they behave like a specific lock and key. This theory says enzyme is having a preformed active site. एंजाइम के अंदर पहले से ही एक प्रीफॉर्म एक्टिव साइट होता है. वो एक्टिव साइट वो जगह है जहां पर आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. तो लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हियर. दैट इज द एक्टिव साइट and this is substrate here. This substrate can bind to this active site. जब substrate और enzyme का binding होगा तो there would be a complex which is formed. What is the name of this complex? Yesterday we have discussed about it. A intermediate complex is formed which we call enzyme substrate complex, and this enzyme substrate complex, this enzyme start catalyzing substrate, and eventually another complex is formed which we call, now this substrate is converted into a product. We call that complex as enzyme product complex, and this product is released from here and enzyme remain unchanged after their action. This is what this theory explains. Again I repeat, in enzyme there are preformed areas. Preformed का मतलब वो जो पहले से बने हुए होते हैं. These are active site. What is the concept of active site? These are free group. This free group could be a amino group. This free group could be a carboxylic acid group, or this free group could be a thiol group. तो एंजाइम जो प्रोटीन इन नेचर है, उनके आउटर सरफेस पर कुछ फ्री ग्रुप होते हैं और उन फ्री ग्रुप के साथ ये सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है. You got my point? It could be like this.
that enzyme is having two active sites. Enzyme is having two active sites like this, and on these two active sites there are two substrate, different substrate which are binding. और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो दोनों सबस्ट्रेट आके बाइंड करना शुरू कर देंगे एंजाइम के साथ। और लेट्स से दिस रिएक्शन इज लाइक इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ टू सबस्ट्रेट, तो इन दोनों के एडिशन के बाद दिस प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म। और आई विल से द प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस, द प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जो शुरू में रिप्रेजेंटेशन बनाया था वो भी ठीक था, और जो प्रोडक्ट बनेगा that is a combination of two substrate like this, and then the product will be released. You are getting my point? तो लोकेंट की हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एंजाइम के अंदर पहले से ही बनी हुई एक्टिव साइट होती हैं, उन एक्टिव साइट पे आके एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैटालिसिस के बाद सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, एंजाइम अनचेंज रह जाएगा। You got my point? What is the significance of this theory? इस थ्योरी से क्या क्या पता चलता है? This theory tells us about the specificity of a enzyme substrate reaction. कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है तो क्या ये फिट कर पाएगा? आंसर वुड बी नो। It should require an active site like this. You are getting my point? Then it also explain how enzyme remain unchanged after their action. I mean to say a small concentration of enzyme is enough to carry out so many reactions. Enzymes are required in small concentration, or small concentration of enzyme is sufficient to carry many biochemical reactions. Third, this also tells us अगर कोई मॉलिक्यूल जिसकी शक्ल सबस्ट्रेट के जैसी है, जिसके साइड ग्रुप सबस्ट्रेट के जैसे है, वो सबस्ट्रेट नहीं है टू बी एग्जैक्ट, कोई मॉलिक्यूल जिसके साइड ग्रुप सबस्ट्रेट के जैसे दे कैन आल्सो कम एंड बाइंड हियर, सो इट आल्सो गिव्स अ concept of inhibition. It also gives a concept of inhibition. Which inhibition? Competitive inhibition. Also give a concept of कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्टिव साइट को अटेन करने के लिए देयर वुड बी अ कंपटीशन बिटवीन इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो क्या ये एंजाइम इसको कैटलाइज कर सकता? आंसर इज नो। अगर एंजाइम कैटलाइज कर पाता फिर तो उसको सबस्ट्रेट कह देते। तो जब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा एंड एंजाइम रिएक्शन वुड बी इनहिबिटेड। तो जो पहला हाइपोथेसिस था दैट इज लोकेंट की हाइपोथेसिस, और वो कहता है कि एंजाइम का एक्टिव साइट प्रीफॉर्म्ड होता है। एक्टिव साइट में 3 ग्रुप होते हैं। 3 ग्रुप कुड बी अमाइनो ग्रुप, कुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कुड बी थायोल ग्रुप। सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पर, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक जो भी कुछ हो रहा है, सबस्ट्रेट कैटलाइज होगा एंड प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड। ये थ्योरी बताता है कि कैसे एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। ये थ्योरी बताता है कैसे स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनफ होता है टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। और ये थ्योरी आइडिया देता है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये हो गया लोकेंट की हाइपोथेसिस, जो अभी ज्यादा अप्रूव्ड नहीं है। जो ज्यादा अप्रूव्ड हाइपोथेसिस है वो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है। तो लेट मी टेल यू अबाउट इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस नाउ। पर कई बार ना बुक्स के अंदर ये डायग्राम बना होता है तो याद रखना वो लोकेंट की हाइपोथेसिस का है, ठीक है। और नाम ही दिया दैट एंजाइम्स आर लाइक लोकेंट की। और इनहिबिटर कैसा होता है? आपके पास कोई फेक की है तो अगर फेक की लॉक के अंदर लगा देंगे तो ना तो लॉक ऑन ओपन हो पाएगा और ना ही ओरिजिनल की फिट हो पाएगी। यू गॉट माय पॉइंट? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम के पास 2 अलग अलग साइट होती है। एंजाइम जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसके पास 2 अलग अलग साइट है। एक साइट को बोलते हैं बटरेसिंग ग्रुप। द फर्स्ट साइट इज बटरेसिंग ग्रुप, और जो दूसरा साइट होता है उसको बोलते हैं कैटालिटिक साइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों मिलके एक्टिव साइट बनाते हैं। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज हैविंग 2 पार्ट, वन इज बटरेसिंग ग्रुप, सेकंड इज कैटालिटिक साइट। आई एम
rubbing this part. According to induced fit theory or induced fit hypothesis, active site is not preformed. Active site is not preformed, पहले से बनी नहीं होती है, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम को एक्सपोज करता है तो एक्टिव साइट फॉर्मेशन होता है, इसलिए वर्ड यूज किया था इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो आई एम टेलिंग यू एक्टिव साइट के दो पार्ट होंगे, एक बटरेसिंग ग्रुप। बटरेसिंग ग्रुप का काम होता है, इट इज मेंट टू होल्ड द सबस्ट्रेट इन पोजीशन, इट इज मेंट टू होल्ड द सबस्ट्रेट इन पोजीशन। एंड सेकेंड जो कैटालिटिक साइट है, जैसा नाम बता रहा है, इट कैटालाइज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, इट कैटालाइज सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। इस थ्योरी को ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि कॉशलैंड साहब ने कहा था, जस्ट थिंक अबाउट ए ग्लव, आपके पास एक फ्लेक्सिबल रबर का ग्लव है और वो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ हैंड वो वैसा ही शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड, तो जो ग्लव का शेप होगा दैट वुड बी लाइक द शेप ऑफ माई हैंड। सेकेंड केस कुड बी अदर पर्सन हैंड जिसका हैंड बहुत ज्यादा बड़ा है, या जिसको आई विल से 6 डिजिट्स है, उसको 2 थंब है उसके पास, XYZ जो भी है, तो जब वो इंसर्ट करेंगे तो वो वैसा हो जाएगा। तो एक्टिव साइट बनती है आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम। एक्टिव साइट के दो पार्ट होंगे, वन इज बटरेसिंग ग्रुप, सेकंड इज कैटालिटिक साइट। तो अकॉर्डिंग टू कॉशलैंड, अगर मैं एंजाइम का डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, वो कभी ऐसे नहीं होते जैसे हम बना रहे हैं। तो वी आर जस्ट कंसीडरिंग दैट प्रोटीन इज लाइक दैट इन शेप। लेट्स से दिस इज एंजाइम हियर, एंड एंजाइम के पास देयर सर्टेन ग्रुप which are meant to hold the substrate, और इन ग्रुप्स को क्या कहेंगे? They are known as buttressing group. And other one, there are certain other which are meant to catalyze. ये कौन सा साइट हो गया? कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट, और वो कौन से ग्रुप हो गए? These are buttressing group. You got my point? अब लेट्स से मैं इनको लेबल भी कर देता हूं, दिस इज A B C D E F एंड सो ऑन, राइट? लेट्स से दिस इज अ सबस्ट्रेट हियर, एंड सबस्ट्रेट इज आल्सो हैविंग साइड चेन लाइक स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन। जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्सपोजर में आएगा तो व्हाट वुड हैपन? सबस्ट्रेट गो and bind like this, और ये जो बटरेसिंग साइट है, they come and hold the substrate in position like this. You got my point? Okay. और जब बटरेसिंग साइट एंजाइम को होल्ड करेगा, उसके बाद ये कैटालिटिक साइट एक्ट करना शुरू करता है सबस्ट्रेट पर, और सबस्ट्रेट को कैटालाइज करना शुरू कर देगा। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहता है कि भाई जो एक्टिव साइट है वो प्रीफॉर्म नहीं होती है, बल्कि वो उसका फॉर्मेशन होता है जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के एक्सपोजर में आएगा। हो सकता है ये जो एक्टिव साइट है वो लाइक अ रोड शेप ना होकर वो कुछ ऐसी थी, अब यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप थे। तो सिमिलरली व्हाट वुड हैपन? एंजाइम विल कवर इट लाइक दिस। इस केस में एंजाइम इसको कैसे कवर कर लेगा? इट वुड बी कवर्ड समथिंग लाइक दिस। तो जैसा एक्टिव साइट, जैसा सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम वैसा ही शेप, एंजाइम का एक्टिव साइट वैसा ही शेप ले लेता है। यू गॉट माय पॉइंट? ओके। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, एक्टिव साइट इज नॉट प्रीफॉर्म्ड, पहला कंसेप्ट, एंड दैट इज मोर एक्सेप्टेड। ये थ्योरी आपको बताता है कि एक ही एंजाइम, जो कल हम पढ़ रहे थे कि भाई सुक्रेज रेफिनोज को भी कैटालाइज करा देता है, सुक्रेज को भी कैटालाइज करा देता है, या फिर आप जो भी प्रोटीन खाते हैं, आपके पास खूब सारी प्रोटीन्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, जो न्यूट्रिएंट प्रोटीन है, क्या पेप्सिन को अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग तरह का पेप्सिन बनाने की जरूरत होती है, या अलग अलग ट्रिप्सिन बनाने की जरूरत होती है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं, इट्स एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, XYZ जो भी है, एंजाइम्स यूज्ड टू डाइजेस्ट दोस प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर? तो इन्होंने बताया था कि भाई ये
एक्टिव साइट प्रीफॉर्म नहीं होती है, वो बनती है जब एंजाइम सबस्ट्रेट एक्सपोज करता है, दो अलग अलग पार्ट होते हैं एक्टिव साइट के, एंड दिस इज हाउ इट वर्क। जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन है उसका कंसेप्ट भी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी से ही कंप्लीट हुआ था, कि बीच में एक स्टेज बनती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं, और ट्रांजिशन स्टेज वो होता है जब सबस्ट्रेट नहीं रहा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया, और ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ट्रांजिशन स्टेट का जो कंसेप्ट है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, नॉट बाय लॉग-एंड हाइपोथेसिस। सो it also explain concept of transition state, right? देखो उसने बता तो दिया था कि भाई एक जो आपका मॉलिक्यूल एनालॉग होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो कैसे ब्लॉक कर सकता है, कैसे ब्लॉक करता है, वो जो मैकेनिज्म है वो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ने बताया था। लॉग-एंड की हाइपोथेसिस वाज नॉट एबल to illustrate the mechanism of competitive inhibition, so it also illustrates the mechanism of competitive inhibition। ये बच्चे हो गए मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, दो मेजर मोड। पहला मोड हो गया लॉग-एंड की हाइपोथेसिस, प्लीज याद रखें किसने पोस्टुलेट किया था और क्या क्या उसके तो भी प्रीपोजिशंस थे, और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी किसने पोस्टुलेट किया था, क्या क्या प्रीपोजिशंस थे, बटरेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक साइट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हिच इज वाइडली एक्सेप्टेड, मोर एक्सेप्टेड आंसर इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इज दैट क्लियर? ये हो गया बच्चे कंसेप्ट ऑफ एंजाइम, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। और जब आप एंजाइम के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं दे आर फ्रॉम एंजाइम इनहिबिशन। सो दिस टॉपिक नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली, और I will recommend you to pay attention and learn everything which I am going to tell you. Enzyme inhibition, as the word tells, जैसा ये नाम ही बता रहा है कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को अगर स्लो डाउन कर दे या स्टॉप कर दे, उसका मतलब होता है एंजाइम इनहिबिशन। इट इज to reduce or stop catalytic activity of any enzyme। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इनहिबिटर। तो सबस्ट्रेट वो होता है जो कैटालाइज होता है, और इनहिबिटर वो होता है जो बाइंड करके एंजाइम से एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे, एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे या बंद कर दे। इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल व्हिच बाइंड टू द एंजाइम एंड इनहिबिट्स एक्टिविटी, इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटी। A reduction or inhibition in the enzyme activities, enzyme inhibition, easy to remember. Okay, first let me tell you different type of inhibitions, and then we will be learning about four major type of inhibitions. Inhibition, it could be reversible, रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एंजाइम, और इस एंजाइम से ये सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा था, और सबस्ट्रेट के जैसा ही एक मॉलिक्यूल एनालॉग आ गया है, और वो है इनहिबिटर। इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है, दोनों ही एक ही साइड पे जाके बाइंड करते हैं, एक्टिव साइड पे जाके बाइंड करते हैं, हम इसको कॉम्पिटिटिव भी बोल देंगे। तो लेट्स से किसकी ज्यादा बाइंड करने की चांस है, आंसर इज इनहिबिटर। हो गया इनहिबिशन। अब आपने क्या किया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दिया, तो अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे, अब किसके ज्यादा बाइंड करने की चांस है, आंसर इज सबस्ट्रेट। तो एक ऐसा इनहिबिशन जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वी कॉल दैट रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन इट कैन बी अंडर बाय increasing concentration of substrate। केस नंबर 1। केस नंबर 2, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी इनहिबिशन नहीं रिवर्स हो रहा है, उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिशन।
जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी इनिबिशन नहीं रिवर्स हो रहा है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल इनिबिशन। जनरली जो मेटल आयन होते हैं, लाइक सिल्वर इज देयर, मरकरी इज देयर, आर्सेनिक इज देयर, जो हैवी मेटल आयन होते हैं, दे शोज इरिवर्सिबल इनिबिशन। एक और याद रखेंगे, आयोडोएसिटिक एसिड also show irreversible inhibition by binding with thiol group. What I am telling you, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि भाई ये एंजाइम है, एंजाइम के पास ये इसका एक्टिव साइट एग्जैक्टली क्या होता है, उसके ऊपर कुछ फ्री ग्रुप्स होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन सबस्ट्रेट के पास भी अगर कोई फ्री ग्रुप है तो इट कैन बाइंड हियर। यू गॉट माय पॉइंट। अगर कोई आयन आके बाइंड कर जाए, लेट से यहां पर आके बाइंड कर गया है सिल्वर आयन, तो जो एक्टिव साइट है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, एक्टिव साइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। इट्स ए काइंड ऑफ कि तुमने कल पढ़ा था कि तुमने एंजाइम वाला जो सॉल्यूशन था उसको ना बॉयल कर दिया, एंजाइम डीनेचुरेट हो गया, तो कूल डाउन करने पे क्या डीनेचुरेट होगा? आंसर इज नो। कैसा इनिबिशन हो गया? इरिवर्सिबल इनिबिशन। बॉइलिंग में इनिबिशन नहीं कर रहे हो आप, हम बात करते हैं जब किसी मॉलिक्यूल के प्रेजेंस से होता है, हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल इनिबिशन के एग्जांपल्स आगे। तो इनिबिशन कुड बी रिवर्सिबल, इट कुड बी इरिवर्सिबल। फर्दरमोर इनिबिशन कुड बी कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। इट कुड बी कॉम्पिटिटिव और इट कुड बी नॉन कॉम्पिटिटिव। जो मेजर हमें पढ़ने हैं दे आर एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनहिबिटर उसी साइड पे जाके बाइंड कर रहा है जहां पे जाके बाइंड करता है आपका सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की बाइंडिंग साइड सेम है, इस इनहिबिशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जनरली रिवर्सिबल होते हैं। अगर इनहिबिटर इज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम साइड टू व्हिच सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड, और इफ इनहिबिटर इज कॉम्पिटिंग टू अटेन द एक्टिव साइड, we call it competitive inhibitor. I will be telling you few examples. Or in case अगर inhibitor, this is the active site here, this is not active site, substrate binding site ये है, inhibitor active site पे bind नहीं करता, कोई अलग site पे bind करता है जो substrate binding site नहीं है, तो there is not a competition between inhibitor and substrate to attain the binding site। एक बार अगर inhibitor यहाँ पर bind कर गया तो जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वुड बी लॉस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर जनरली इरिवर्सिबल, दे कुड बी रिवर्सिबल बट दे आर वेरी रेयर। तो इट कुड बी नॉन कॉम्पिटिटिव इफ इनहिबिटर इज बाइंडिंग ऑन द अदर साइड देन एक्टिव साइट, इट कुड बी कॉम्पिटिटिव इफ इनहिबिटर इज बाइंडिंग ऑन द सेम साइट ऑफ टू व्हिच सबस्ट्रेट इज बाइंडिंग, इट कुड बी रिवर्सिबल और इट कुड बी इरिवर्सिबल, इट कुड बी इरिवर्सिबल और इट कुड बी रिवर्सिबल। दीज आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ इनिबिशन। नाउ जब टाइप ऑफ इनिबिशन पढ़ेंगे, आई विल बी टेलिंग यू कंसेप्ट अबाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, सेकंड कंसेप्ट अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, देन a very new concept about allosteric inhibition or feedback inhibition, and the most common one is protein denaturation. So let me these are the general idea how inhibition is going to take place. Let me further start about the different type of inhibition. तो एंजाइम इनहिबिशन के जब डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, the first type which I am going to tell you is protein denaturation. तो जैसा आप कल भी पढ़ रहे थे टेम्परेचर इफेक्ट में, फर्स्ट टाइप ऑफ इनहिबिशन, फर्स्ट इज प्रोटीन डीनेचुरेशन। प्रोटीन डीनेचुरेशन में क्या कर सकते हैं आप, एंजाइम हीट सेंसिटिव होते हैं, तो किसी भी एंजाइम सॉल्यूशन को आप हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर दें, उसका स्ट्रक्चर डिग्रेड और डैमेज हो जाएगा और फिर रिकन्फर्मेशन नहीं हो पाए। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन कुड बी बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन टेम्परेचर, और पीएच आल्सो अंडरगो प्रोटीन डीनेचुरेशन, और रेडिएशन आल्सो अंडरगो प्रोटीन डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन कुड बी बाय टेम्परेचर, इट कुड बी बाय a particular pH, or even it could be by
environmental condition like radiation. They are generally irreversible in nature. Once denaturated, they cannot be renaturated back. Second, let us talk about the concept of competitive inhibition. Now the real show starts. Competitive inhibition. So what you learned up to now in competitive inhibition, inhibitor compete with which molecule? With substrate to attain active site. Now if you have really learned something yesterday, you will be telling me what is the meaning of term affinity and how affinity affect the Km value. This is our enzyme here. This is our enzyme here, for example. This is one individual and this is other individual, and both the individuals are true friend. You know, there are certain which we call besties. They are very true friend, very bestie. That individual only talk with this one and that only talk with this one. That's okay. We are talking about specificity as well. Okay, now there is someone who looks like substrate, but he is not substrate or she is not substrate. If there is a competition in this substrate and inhibitor to attain the active site, what we call that? Competitive inhibition. अब एफिनिटी की बात करते हैं. जब तक इनहिबिटर नहीं था तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम वेरी गुड इंटरेक्टेड थे. जैसे इनहिबिटर आ गया, एंजाइम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया. इनहिबिटर कैन आल्सो बाइंड हियर और सबस्ट्रेट कैन आल्सो बाइंड हियर. इट इज लाइक नाउ दैट इंडिविजुअल आल्सो गोट वन मोर फ्रेंड, एंड डिपेंडिंग अपॉन किसका कॉल पहले आ जाए उससे वो बात करना शुरू करते, चिट चैट करना शुरू करते. तो क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू एफिनिटी का फर्क पड़ेगा? आंसर इज यस. दे रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट, दे इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट. दे रिड्यूस एफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट. अब आप मुझे बताओ, जब तक इनहिबिटर नहीं था, लेट्स से तब तक Km वैल्यू जो है वो x थी. x कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर हाफ ऑफ द Vmax अटेन हो रहा था. इनहिबिटर आने के बाद Km वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आंसर इज Km वैल्यू बढ़ जाएगी. तो जैसा कल बताया था, Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी. तो एफिनिटी कम हुआ तो Km वैल्यू बढ़ जाएगा. अभी ग्राफ बनाऊंगा तो वहां पे कंसेप्ट यूज होगा. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कंपीट करते हैं टू अटेन द एक्टिव साइट. नाउ व्हिच आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? वन बाय वन वी विल बी लर्निंग अबाउट फ्यू एग्जांपल्स. वो एग्जांपल्स को लेके क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं. एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. पहला एग्जांपल पढ़ते हैं. लेट्स से इस एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. और जो नॉर्मल अल्कोहल आपके बॉडी के अंदर है, लेट्स से बाय सर्टेन प्रोसेसेस इथेनॉल इज फॉर्म्ड, एंड दैट इथेनॉल और बाय सर्टेन medication, by certain feeding, you have been taking some ethanol. You know, ethanol is very common. This alcohol dehydrogenase process all the ethanol. So this substrate, who was the substrate? Ethanol. Who is catalyzing this? Alcohol dehydrogenase. Everything is going very very okay. अब इथेनॉल के जैसा ही कोई आ जाता है, exactly identical structure तो नहीं है, पर that is having a lot of similarity with ethanol. The name is methanol. अब अगर मेथनॉल जाके बाइंड करना शुरू कर गया एक्टिव साइट पर, एक्टिव साइट तो ऑक्यूपाई हो जाएगी. क्या इथेनॉल आगे कैटलाइज होगा? आंसर इज नो. इवन अगर मिथेनॉल कैटलाइज होना शुरू हो गया तो टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाती है. उस चीज को बोलते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग. फॉर एग्जांपल, कुछ वर्कर्स हैं और वो किसी मिथेनॉल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. मिथेनॉल इज नॉट गुड फॉर बॉडी, इट इज टॉक्सिक. वो किसी भी रीजन से एक्सपोज हो गए इथेनॉल से, इथेनॉल ड्रिंक कर लिया उन्होंने XYZ. अब
उन्होंने मिथेनॉल ड्रिंक कर लिया। अब मिथेनॉल जाके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो पहला एग्जांपल पढ़ेंगे, इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज in which poisoning? In methanol poisoning। तो आपके पास कुछ वर्कर्स थे, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। रोज शाम को उनकी आदत थी खूब सा इथेनॉल लेने का, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजन बहुत एक्टिव था। एक दिन किसी एक्सीडेंट में उन्होंने मिथेनॉल इनहेल कर लिया या ड्रिंक कर लिया, उनको मिथेनॉल पॉइजनिंग होना शुरू हो गया। दे टेक इट टू द डॉक्टर। अब सी व्हाट डॉक्टर्स डू। मिथेनॉल पॉइजनिंग में पेशेंट को इथेनॉल दिया जाता है। मिथेनॉल पॉइजनिंग में पेशेंट को इथेनॉल दिया जाता है। तो जब इथेनॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या मिथेनॉल बाइंड कर पाएगा? आंसर इज नो। रिवर्स इनहिबिशन इज रिवर्स। So inhibition of alcohol dehydrogenase in methanol poisoning is a classical example, and how it has been overcome? It is overcome by giving ethanol there. Is that clear? Second, जो second classical example पढ़ेंगे that is inhibition of succinic dehydrogenase बाय इनहिबिटर के नाम लिख रहा हूं मैं, जो पूछे जाते हैं। मेलोनेट एंड ऑक्जेलो एसीटेट, बाय मेलोनेट एंड ऑक्जेलो एसीटेट। ये कैसा इनहिबिशन है सर, ये भी समझाओ। ओके, एक आपके पास सबस्ट्रेट होता है जिसका नाम है सक्सिनेट, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है इनटू फ्यूमरेट विद द रिडक्शन ऑफ यूबीक्विनॉन टू यूबीक्विनॉल, प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट। तो दिस सक्सिनिक डिहाइड्रोजन इज डूइंग दैट रिएक्शन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनेट? इफ आई मेक सक्सिनेट हियर, सक्सिनेट is CH2 COO negative COO negative. This is how succinate look like. This is the structure of substrate. अब मैं इनहिबिटर के स्ट्रक्चर बनाता हूं। अगर मैं मेलोनेट बनाऊं, मेलोनेट would be like this. This is the structure of malonate, having one lesser CH2 group but side group is same, right? And अगर मैं ऑक्जेलो एसीटेट बना दूं, ऑक्जेलो एसीटेट, it is something like this, C double bond O, CH2 C double O negative. This is oxalo acetate and this is malonate, both having same side chain like that of substrate. तो जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इट गेट इनहिबिटेड। तो सेकंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ इनहिबिटर। One is inhibitor is malonate, second inhibitor is oxaloacetate, succinate is substrate, it is not inhibitor, ये भी याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। third example which is very commonly asked and good to know actually. You know, there are certain drugs which are antibacterial in nature and we call that sulfur drug, or in medical science we actually call that sulfur drug. What is that sulfur drug? I will be telling you, or just remember that they are sulfur drug, right? Okay, third, it would be bacterial growth inhibited by sulfur drug. So हम पढ़ेंगे, it's a case of competitive inhibition. I am going to teach you how this sulfur drug is able to
inhibit the bacterial growth. All right. Do you know what is folic acid? हाँ सर, कल परसों कुछ दिन पहले आप बता रहे थे फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन फर्टिलिटी इन मेल. यस, B9. एंड फॉलिक एसिड सिंथेसिस कैसे होता है? हाउ फॉलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन अ लिविंग सेल. दिस फॉलिक एसिड व्हिच इज B9, it is synthesized by B10, and B10 is, okay, I am making the structure here. This is the structure of B10, para amino benzoic acid. Let's call that PABA. Para amino benzoic acid is converted into folic acid by the activity of enzyme dihydroterate synthase or synthase, right? तो नॉर्मली हो क्या रहा है, ये जो डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेज है ये फॉलिक एसिड फॉर्मेशन करा रहा है. ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है फॉलिक एसिड में. बैक्टीरिया को अगर अपनी फॉलिक एसिड, बैक्टीरिया को अगर सर्वाइव करना है तो उसको फॉलिक एसिड खुद बनाना पड़ता है. वो ह्यूमन सेल के फॉलिक एसिड नहीं यूज कर सकता, ये भी याद रखिए. ठीक है, इन ह्यूमन सेल वी हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ फॉलिक एसिड बाय आवर डाइट, नो इश्यूज, बट बैक्टीरिया नीड टू सिंथेसाइज इट्स ओन फॉलिक एसिड. एंड हाउ इट यूज्ड टू डू दैट? इट फॉर्म फॉलिक एसिड फ्रॉम पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. इतना समझ में आ रहा है? अगर मैं, अच्छा, ये एंजाइम को ब्लॉक अगर मैं कर दूं तो क्या फॉलिक एसिड बन पाएगा? आंसर इज नो. उस एंजाइम को ब्लॉक करने के, इसको हिप्नोटाइज करने का तरीका क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल दे देते हैं जो पाबा के जैसा दिखता है. ओके, आई एम मेकिंग अनदर मॉलिक्यूल हियर. ओके, तो ये जो ड्रग होती है इनके अंदर होता है बेटा सल्फोनिल एमाइड. सल्फोनिल एमाइड. और इस सल्फोनिल एमाइड किसको ब्लॉक करता है? डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेसेस को. इन सल्फर ड्रग in their composition there is present sulfonyl amide which actually compete with PABA and block dihydrotease synthesis or inhibit the formation of folic acid. Is that clear? Okay, how sulfonyl amide look like? Let's say आपके पास this is amino group SO2 NH2. This is sulfonyl amide here and it look very much like that of PABA. So if sulfonyl amide is given in drug, it would inhibit the activity of dihydroteate synthesis. So what is competitive inhibition? Competitive inhibition में आप सबस्ट्रेट का एक एनालॉग देते हैं. एक सबस्ट्रेट का एनालॉग मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट पर और एंजाइम की कैटालिसिस प्रॉपर्टी को कर देता है कम. जितने एंजाइम ब्लॉक होते जाएंगे, जितनी, लेट्स से एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होता है, आंसर इज नो. एंजाइम इज हैविंग मेनी एक्टिव साइट. तो जितनी एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी उतना ही स्पीड कम होना शुरू हो जाएगा. अगर सारी एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई तो रिजल्ट इज 0. तो इनहिबिटर के बाद भी अगर आपको Vmax मिल रहा है, इट सिंपली मीन देयर सर्टेन एक्टिव साइट एट व्हिच सबस्ट्रेट इज गेटिंग बाइंडेड. इज दैट क्लियर? से यस और नो. और क्लासिकल एग्जांपल कौन कौन से? पहला है इनहिबिशन ऑफ in methanol poisoning there is inhibition of alcohol dehydrogenase. Second है malonate and oxaloacetate inhibit succinate dehydrogenase. And third है आपके पास inhibition of antibacterial drug like sulfur drug consists of sulfonyl amide, and this sulfonyl amide it inhibit the activity of dihydrotease synthesis, and sulfonyl amide is an analog molecule of PABA. Are we clear up to here? Now let us make a kinetics, reaction kinetics of competitive inhibitor enzyme. Right? How this competitive inhibitor enzyme, how this competitive inhibitor enzyme is undergoing changes, and how Vmax and Km is affected during competitive inhibition. चलो ये चीज तो आप मुझे बताएंगे. I personally believe that you guys are very attentive with the lecture and you are learning things properly. मैं एक रिएक्शन काइनेटिक्स ड्रॉ कर देता हूं. पहले आप बताओ इफेक्ट ऑन Km.
एफिनिटी कम हुई या ज्यादा हुई? एफिनिटी कम हुई, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केएम पे क्या फर्क पड़ेगा? इट इंक्रीजेस, केएम इंक्रीजेस। इज दैट क्लियर? मेक्स ए पॉइंट, इसलिए कल एफिनिटी बता के गया। तो आप अगर रिएक्शन काइनेटिक्स बना रहे हैं, आपके पास यहां पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है और यहां पर आप एंजाइम एक्टिविटी शो करते हैं, राइट? जब तक इनहिबिटर नहीं था, लेट्स से कल भी पढ़ा था, इट वाज लाइक दिस। ये वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, जब हाफ ऑफ द Vmax अटेन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे हाफ ऑफ द Vmax अटेन होता है, उसे बोलते हैं मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट और Km। और ये क्या है यहां पर? दिस इज Vmax। ठीक है बेटा। अब अगर कोई एंजाइम कोई इनहिबिटर आ जाता है, इट इज लाइक दिस नाउ, in presence of inhibitor, the kinetics is like this now. Now to attain half of the Vmax, more substrate is required, तो mu came here, km बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया, ठीक है। अब Vmax के ऊपर आते हैं, इतना समझ में आता है? अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, देखो जब तक इनहिबिटर काम कर रहा है मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहा हूं, इट इज लाइक दिस। अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या ये इनहिबिशन रिवर्स हो सकता है? आंसर इज यस, दिस इनहिबिशन कुड बी रिवर्स्ड इफ आई एम इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लाइक दिस। अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाता चला जाऊं तो इनहिबिशन रिवर्स हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Vmax? नाउ यू टेल मी, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Vmax पे क्या फर्क पड़ेगा? अगेन आई रिपीट, अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, इस एक्सिस में बढ़ रहा है, तो Vmax वुड बी अनचेंज्ड। आप अनचेंज्ड याद रखिए। तो इन केस ऑफ, व्हाई इट इज अनचेंज्ड? बिकॉज देयर आर मोर सबस्ट्रेट व्हिच कैन गो एंड बाइंड देयर। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको दो ऐसे ग्राफ मिल जाएंगे। तो जैसे भी कोई एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, ऑनगोइंग रिएक्शन है, सबस्ट्रेट आर रेयरली अवेलेबल। आपने किया होता, यहां पर आपने अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा के Vmax को रिटेन कर लिया, बट Km एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, राइट? अनटिल और अनलेस इनहिबिटर इज हियर। इनहिबिटर खत्म हुआ तो फिर Km वापस वहीं पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये अगर आपसे पूछा जाएगा, और ये दो पॉइंट जरूर याद रखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन Km एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑन Vmax। तो Vmax अनचेंज रहता है, क्यों? इट कुड बी रिगेन्ड बाय इंक्रीजिंग concentration of substrate. That's why we mentioned that it is unchanged, and Km once increased is increased. Do these things make a sense? Please say yes or no. Okay, I believe you said yes, right? I really miss that classroom. It's very hard. The students are not there, and you have been every day. You have been teaching just by looking at a camera. The student भी मजाक बनाते होंगे. All right, let us discuss about the concept of non-competitive inhibition now. Competitive inhibition is completed. Time is flying. Let us discuss the concept of non-competitive inhibition now. There is one two student from your class who are complaining, sir, why you always upload that much lengthy video? The answer is, if I am not uploading that lengthy video, the topic would not be completed. Anyways, concept of non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition. I told you they could be reversible, they could be irreversible, but in much of the cases they are irreversible in nature. ठीक है? In non-competitive inhibition, there is no जो inhibitor molecule है, inhibitor molecule bind on other side than active site. So there is no competition to attain this active site between substrate and between inhibitor. इनहिबिटर तो जाके बाइंड करेगा, लेट से यहां पर एक साइट है, और जब इनहिबिटर जाके बाइंड करेगा तो इसका जो एक्टिव साइट है वो काम करना बंद कर देगा, कैटालिसिस बंद कर देगा. इट इज रिवर्सिबल जब तक इनहिबिटर बाइंड. Makes sense? There is no competition in achieving the active site between a substrate and a inhibitor.
Please tell me the love of that enzyme for that substrate. Do this love changes in presence of inhibitor? Answer is no. Substrate would be equally binding with the same affinity. ये बात अलग है, सबस्ट्रेट अब कैटालाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि एक्टिव साइट चेंज हो गया, एक्टिव साइट डीनेचुरेट होना शुरू हो गया, एक्टिव साइट ब्लॉक हो गया, बट सबस्ट्रेट बाइंडिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो एफिनिटी एंजाइम और सबस्ट्रेट की, इट इज नॉट चेंज्ड. अगर एफिनिटी चेंज नहीं होगी तो क्या Km वैल्यू चेंज होगी? आंसर इज नो. सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Km? आई एम मेंशनिंग हियर इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. व्हाट इज इफेक्ट ऑन Km? It remains unchanged. Reason being, affinity is not changed. What about Vmax? I will be telling you after learning certain examples. Examples of non-competitive inhibition. पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे. अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना, उसने साइनाइड खा लिया, उसने साइनाइड खा लिया, जहर खा लिया एंड सो ऑन. जो साइनाइड पॉइजनिंग है, दैट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ non-competitive inhibition. तो inhibition of which enzyme is blocked in cyanide poisoning? Inhibition of cytochrome oxidase. अभी ना कुछ मेटल आयंस के बारे में पढ़ेंगे. कॉपर इज द इंपॉर्टेंट वन, और उससे आगे बाइंड कर जाता है साइनाइड. इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड इन विच पॉइजनिंग? इन साइनाइड पॉइजनिंग. तो आपने पढ़ा होगा साइटोक्रोम सी के बारे में. जो साइटोक्रोम सी है, दैट इज अ सबस्ट्रेट. साइटोक्रोम सी प्रोटीन, इट्स अ सबस्ट्रेट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के ऊपर काम करता है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कराता है. इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन and we are able to breathe, we are able to make energy due to these activities. The final step is termination of one respiratory process. The role goes to cytochrome oxidase. ठीक है. अगर ये एंजाइम ही ब्लॉक हो जाए तो क्या आप नॉर्मली रेस्पायर कर पाओगे? आंसर इज नो. और जब रेस्पिरेशन बंद होना शुरू हो जाता है, वी कॉल इट एस्पायरेशन. जनरली साइनाइड पॉइजनिंग में पेशेंट की डेथ होती है ड्यू टू एस्पायरेशन. तो इन साइनाइड पॉइजनिंग देयर इज इरिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. आपका बॉडी को किस चीज की प्रॉब्लम हो रहा है? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एटीपी वगैरह नहीं बन पा रहा है. आंसर इज एटीपी वगैरह नहीं बन पा रहे. तो साइनाइड पॉइजनिंग का जो ट्रीटमेंट भी होता है, वी गिव इंजेक्शन ऑफ एटीपी टू द पेशेंट कि भाई लो, लेट्स हैव सम एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. तुम अभी साथ मत छोड़ना, वी विल बी गोइंग टू डील विद दिस थिंग एज वेल. एंड सी, आप देखो जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके डिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स नहीं है. दे कीप ऑन डिग्रेडिंग आफ्टर सम टाइम. तो इफ समबडी हैव टेकन सम साइनाइड and you have been treating it by ATP injection which keep our sodium potassium ADPase pump functional. ठीक है बेटा. तो पहला क्लासिकल एग्जांपल हो गया इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन साइनाइड पॉइजनिंग, राइट. एग्जांपल नंबर 2. देन आपने पढ़ा होगा अबाउट नर्व गैस, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट. डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, इट इज नॉर्मली नोन एज नर्व गैस. और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम को ब्लॉक करता है. द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज. एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज. और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें जो सीरीन वाला अमीनो एसिड होता है, जो सीरीन अमीनो एसिड होता है, उस पर जाके बाइंड कर जाता है DFP. और एसिटाइलकोलिन हो जाता है ब्लॉक. और एसिटाइलकोलिन का आपने रोल पढ़ा होगा इन द नर्व कंडक्शन. Acetylcholine is very important in nerve conduction of over neuromuscular junction. So second classical example is blockage of acetylcholine esterase in nerve gas poisoning. ठीक है बेटा. तीसरा, कुछ आप ना जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, वो भी इरिवर्सिबल बाइंड करते हैं इसी एंजाइम को.
तो acetylcholinesterase could be blocked by nerve gas or it could be blocked by insecticide or organophosphorus compound. ठीक है. Then अगर आयोडोएसिटिक एसिड का पोजीशनिंग की बात करूं मैं, आयोडोएसिटिक एसिड ये ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करता है जिसके पास एक्टिव साइट में थायोल ग्रुप है, राइट, या फिर जिसके पास एक्टिव साइट में इमिडाजोल रिंग है. आई एम नॉट गोइंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ दोज कंपाउंड, बस नाम याद रख लेना, डेट इज इनफ. ना भी याद है तो कोई इशू नहीं, पूछते नहीं जनरली, आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल. अगर पूछ लिया तो डेट वुड बी गुड. ऐसा कोई भी एंजाइम जिसके एक्टिव साइट, जिसके साइड चेन में यू आर हैविंग थायोल ग्रुप और यू आर हैविंग इमिडाजोल रिंग, वो सारे एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं आयोडोएसिटिक एसिड से, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो एक्टिव साइट लेट से यहां पर आपके पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये वो पार्ट है जो एक्टिव साइट का पार्ट नहीं, दैट इज थायोल और इमिडाजोल रिंग, और यहां पे आके बाइंड कर जाएगा आपका इनहिबिटर. कौन कौन से एंजाइम में ये होता है, एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल मैं बता दूं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आल्सो हैव दैट टाइप ऑफ साइड चेन्स. तो आयोडोएसिटिक एसिड आल्सो अंडरगो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. डीएफपी के केस में याद रख लेना, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिप्सिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलास्टेज, दे आर आल्सो इनहिबिटेड. तो बच्चे अब मुझे बताओ, आप एक ग्राफ बना के कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का. ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम काइनेटिक्स विदाउट एनी इनहिबिटर, ये Km. ठीक है, क्या Km पे कोई फर्क पड़ने वाला है? आंसर इज नो. तो जो इनहिबिटर की प्रेजेंस में Km होगा दैट वुड बी अगेन द सेम. नो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट लाइक दिस. This is Km here. अब इनहिबिटर की प्रेजेंस में लेट्स से द काइनेटिक्स बिकम लाइक दिस. पहले Vmax ये था, तो ये हाफ ऑफ द Vmax है. अब Vmax ये है, तो हाफ ऑफ द Vmax क्या होगा? दिस इज हाफ ऑफ द Vmax, न्यू हाफ ऑफ द Vmax. Km इज स्टिल द सेम, Km इज स्टिल द सेम, Km चेंज नहीं होता है. What about Vmax? कम हो गया, अगर मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो क्या Vmax बढ़ जाएगा? आंसर इज नो. तो इफेक्ट ऑन Km वाज अनचेंज्ड, इफेक्ट ऑन Vmax, इफेक्ट ऑन Vmax, Vmax is unchanged or Vmax is increased? Vmax is decreased in case of non-competitive inhibition. ठीक है बेटा, ये दो क्लासिकल आपके ग्रुप हो गए इनहिबिशन के. एक और ग्रुप मैं बता देता हूं, आई विल बी टेकिंग 10 मिनट्स मोर. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड व्हाट आर एलोस्टेरिक एंजाइम. कल आपको बताया था कि एलोस्टेरिक एंजाइम का कोई डेफिनेट Km नहीं होता है. एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट हैव अ Km वैल्यू, डेफिनेट Km वैल्यू. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एंजाइम की Km कहां पर थी? इट वाज इन द रेंज ऑफ 10 to the power -6 to 10 to the power -1. The next one is allosteric inhibition. Allosteric inhibition. पहले समझ लो एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, देन आई विल बी टेलिंग यू एलोस्टेरिक इनहिबिशन. आपके पास ये एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है. इस एंजाइम के पास कुछ और साइट्स हैं. लेट्स से दिस इज वन साइट हियर, दिस इज अदर साइट हियर. और ये साइट है, बाकी की जो साइट है, लेट्स से साइट ए और साइट बी, ये डिसाइड करती हैं कि एक्टिव साइट फंक्शनल है या नहीं है. I mean to say, this is the enzyme here and there, this is active site here, and these are other site. Depending upon either this site is activating enzyme or this site is inactivating enzyme. तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके पास एक्टिव साइट के अलावा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ पॉइंट होते हैं.
तो वो एंजाइम जो मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल से स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो जाते हैं, उन एंजाइम को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। सो एलोस्टेरिक एंजाइम दे हैव स्विच ऑन और स्विच ऑफ by modulator molecules। इन्हीं मॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम होता है एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल। तो जिन एंजाइम की एक्टिविटी मॉड्यूलेट कर सकते हैं बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एलोस्टेरिक एंजाइम। एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, शायद चीजें क्लियर हो जाए। ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज, फोस्फो fructokinase, remember that enzyme? This phosphofructokinase is activated by ADP। तो जब ADP मॉलिक्यूल आएगा, this phosphofructokinase is activated। माने यहां पर ADP मॉलिक्यूल आगे बाइंड करेंगे, और this phosphofructokinase is inactivated by ATP। कैसा इनहिबिशन है? Who is doing acting as inhibitor? ATP है। तो जब कोई भी एंजाइम का एक्टिविटी कुछ और मॉलिक्यूल से रेगुलेट हो सके, उस एंजाइम को, जिस एंजाइम के अंदर स्विच ऑफ पॉइंटेड टू बी वेरी एग्जैक्ट, उस एंजाइम को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। अब ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता क्या है? लेट मी टेल यू एग्जांपल्स ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। What is the first step? Glucose is converted into glucose 6-phosphate by whom? By hexokinase। कल पढ़ा था एंड प्रोडक्ट से क्या मतलब होता है। अगर ये ग्लूकोज 6-फोस्फेट यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया तो ये इनहिबिट करना शुरू कर देता है हेक्सोकाइनेज को कि भाई आप वो ग्लूकोज 6-फोस्फेट मत बनाओ। सो ग्लूकोज 6-फोस्फेट इज स्विचिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, and when glucose 6-phosphate is used, this enzyme is switched on, right? Glucose 6-phosphate is not competing with glucose, so it is not a kind of competitive inhibition. Glucose 6-phosphate bind on the other side rather than active side. It is also not non-competitive because most of the non-competitive is reversible. Why we call it allosteric? Because hexokinase enzyme is an allosteric enzyme। तो पहला क्लासिकल एग्जांपल ऑफ allosteric क्या हो गया? इनहिबिशन ऑफ hexokinase by glucose 6-phosphate। इनहिबिशन ऑफ hexokinase by glucose 6-phosphate। ठीक है बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल जो भी पढ़ा आपने, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेटेड बाय व्हाट? एक्टिवेटेड बाय एडीपी और इनहिबिटेड बाय एटीपी। इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। चलिए एक और एग्जांपल बता दो जब एलोस्टेरिक इनहिबिशन बहुत क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल इज इनहिबिशन ऑफ threonine deaminase by isoleucine in E. coli। See what happens। आपके पास सबस्ट्रेट है थ्रियोनिन, नो फन इन टेलिंग इट्स अमीनो एसिड और व्हाट? एंजाइम है यहां पर थ्रियोनिन डीएमिनेज। एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा जिसमें जो थ्रियोनिन डीएमिनेज है वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता चला जाएगा। एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है जिसमें थ्रियोनिन डीएमिनेज अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। फर्स्ट इज अल्फा कीटो ब्यूटाइरिक एसिड। Threonine deaminase act on threonine and make alpha ketobutyric acid. This alpha ketobutyric acid by another enzyme is converted into
अल्फा एसीटो हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. Is that clear? Then third enzyme convert this alpha aceto hydroxybutyrate into alpha beta dihydroxybutyrate into alpha beta dihydroxybutyrate. ये अगर नाम याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है, जो याद रखना है दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. Alpha beta dihydroxybutyrate. Next would be fourth enzyme alpha keto beta methyl valerate. This is enzyme number 4. And enzyme 5 act and convert alpha keto beta methyl valerate into isoleucine. तो What I am telling you right now, E. coli के अंदर आइसोल्यूसिन थ्रियोनिन से बनता है. और कैसे बनता है? दिस इज 5 स्टेप रिएक्शन. एक बार अगर आइसोल्यूसिन बनना शुरू हो गया, वो यूज नहीं हो रहा है, दिस आइसोल्यूसिन गो एंड स्टार्ट इनहिबिटिंग थ्रियोनिन डीएमिनेज. तो कौन सा एंजाइम ब्लॉक हुआ? थ्रियोनिन डीएमिनेज. किससे ब्लॉक हुआ? आइसोल्यूसिन से. तो एलोस्टेरिक में एक ये याद रख लो, जब एंड इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन. एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज आल्सो नोन एज फीडबैक इनहिबिशन. आप पढ़ के भी आए हो ना फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, राइट? फीडबैक तो आपको पता ही होगा ना व्हाट इज फीडबैक. कल कोई आपसे पूछे कि भाई वो आपको कैसा पढ़ाते हैं, तो यू आर गोइंग टू गिव फीडबैक. सिमिलरली जब किसी सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन से किसी का सिक्रीशन बढ़ जाए तो पॉजिटिव फीडबैक, और कम हो जाए तो नेगेटिव फीडबैक. तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज अ काइंड ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, जिसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो एक्युमुलेट होके एंजाइम को ब्लॉक करना शुरू कर देता है. अगर एडीपी एक्युमुलेट होना शुरू हो गया तो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, और एडीपी फॉस्फोराइलेट हो गया. अगर एटीपी एक्युमुलेट होना शुरू हो गया तो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा. और एटीपी जैसे ही हाइड्रोलाइज हुआ, एडीपी बना तो एंजाइम ने काम करना शुरू कर दिया. एडीपी फिर से एटीपी में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा. तो दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़े 2 पार्ट. वन इज मोड ऑफ एंजाइम एक्शन एंड सेकंड इज कंसेप्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन. नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. So this is all for today. Class is dismissed. Please make notes, pay attention and learn all the things. If you are having any doubt, you can consult me on my number. Thank you.